Okay, now what we are reading? We are reading the fundamental rights. In last lecture मैंने आपको बताया कि what was the origin of fundamental rights. उसमें हमने क्या डिस्कस किया? We discussed here the Magna Carta. हमने कहा कि why this fundamental rights is also or is commonly called as a Magna Carta of the Constitution. Okay. उसमें हमने कहा कि what was the purpose of Magna Carta? Magna Carta was actually it was a contract between the king of the England and the rich people of the England, because in that contract it was decided now onward the king of the England is not above the law. Okay, it was also decided that now onward the king of the England will be accountable to the law, just like the common citizens or subjects are accountable to the king. Okay, to the law. Okay, that's it. And then later on we also discussed the Bill of Rights. We say that 10 amendments that took place in the British this USA, and in that sense this bill was known as the Bill of Rights. यहाँ पे इसको कहते हैं fundamental rights, and in the USA this is known as the Bill of Rights. And one thing must be pointed out here, that the Constitution of India draws the inspiration of fundamental rights from the USA, fundamental rights जो इंडिया में लिए गए हैं, it has been taken from the USA. The features of the fundamental rights. Fundamental rights जो कि आपको पता है कि some rights are available to citizens and some are for all the citizens only. आपको पता है कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 14 से लेकर जो है आर्टिकल 31 तक जो भी फंडामेंटल राइट्स है, these are available to all the citizens of India. Okay, यानी कि ये वो फंडामेंटल राइट्स है, it cannot be taken away by anyone, whether it is a private person or whether it is a state. इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसको छू नहीं सकता है, ठीक है, इन फंडामेंटल राइट्स को. लेकिन some fundamental rights are available to citizens, यानी कि उन लोगों को जो यहाँ पे है, और कुछ जो है फॉरेनर्स हैं, ठीक है, जो भी फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं उनको भी फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं. For example, we are living in India, we have fundamental rights, okay, but if someone is coming from the USA as a tourist, he has also fundamental rights. Till he resides in India, he studies in India, he is a tourist in India, he is taking the medical advice, he is admitted somewhere in the India, he is taking the medical consultation, etc. He is also the fundamental rights are also available to him as well. Okay, उसको ये नहीं छीन सकते. लेकिन there is exception. Some fundamental rights are only available for citizens, not foreigners. यानी कि सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो अवेलेबल है सिटीजन्स को, फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है, जो उनको नहीं दे सकते. फॉर एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15, 16, 29, 30, these are the fundamental rights which are available, which can be only enjoyed by the citizen of India. Okay, for example, article 16 says that no, there will be equal opportunity in terms of government jobs, employment, ठीक है. यानी कि हिंदुस्तान में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है on the basis of color, creed, caste, etc. when he is applying for a government job, ठीक है, there will be equality. लेकिन ठीक है, लेकिन फॉरेनर के लिए ये अवेलेबल नहीं है. So consider you are tourist as this fundamental right is not available to him. Okay, समझ में आया? He cannot be given these fundamental rights. कि कौन से exception है? 15, 16, 29 and 30. These are only available to the citizens of India. These are not available to the foreigners. Because here is, for example, I am telling you article 16, equal opportunity in terms of employment. These cannot be enjoyed by the foreigners who have come here as a tourist, who has come here as, for example, to study, who has come here to take some medical consultation. During this period of time, he can enjoy all fundamental rights except these fundamental rights. Okay, this is one feature. Moving ahead. Fundamental rights are not absolute but qualified. State can impose some reasonable restrictions on it. Now understand, इसको समझने की जरूरत है. Fundamental rights are not absolute. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये नहीं है किसी को फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यानी कि हर एक को
बात करने का हक है, हर एक को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का हक है, बट इट डजंट मीन एक आदमी कुछ भी बोल सकता है। ओके, देयर इज अ रीजनेबल, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। एक आदमी उतना ही कह सकता है, देयर द लिबर्टी, द फ्रीडम ऑफ ए पर्सन एंड्स व्हेन इट स्टार्ट्स टू ऑफेंड द अनदर पर्सन। समझ में आ गया? यानी कि मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मेरी एक्टिविटी, मेरी जो फंडामेंटल राइट वहां पे खत्म हो जाती है जहां पे किसी को ऑफेंड करना शुरू कर देती है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो प्राइवेट पर्सन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। फॉर एग्जांपल मुसलमान में अपनी मर्जी, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी को बोलना शुरू कर दूंगा, डज इट मीन इट इज अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच? नो, इट्स सेम इन द सेम वे। फॉर एग्जांपल इन देयर इज दिस, इसी तरह जो व्हाई this is a there is a reasonable restriction. A government can curb, a government can restrict the freedom of expression, it can curb the fundamental right when it starts to affect the security, जब security के लिए खतरा हो जाए, when it starts to public morality में फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम करनी शुरू कर दी, किसी फ्रीडम, किसी की आज़ादी वगैरह, वहाँ पे जो है स्टेट आ जाएगा, उसको वो एक्टिविटी करने नहीं देगा, वो नहीं क्लेम कर सकता है ये मेरा फंडामेंटल राइट है। यानी फॉर एग्जांपल कोई कहेगा मुझे कुछ भी पहनने की जो है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई एक्टिविटी कर सकता हूँ, लेकिन when it is harming, when it is hurting the public morality, public sanctity, इसका मतलब ये है कि उस पे गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। ठीक है, so इसी को हम कहते हैं there is no absolute freedom of fundamental rights। इसी तरह डिसेंसी। लेकिन अब सवाल ये है कि who will decide the reasonable restriction? Who can decide कि whether this is offending another person or not? whether इसको restrict करने की जरूरत है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? It will be decided by the court of law. Okay? Now the court will decide कि ये आदमी जो कर रहा है क्या इस पे जो है इसको, इसकी फंडामेंटल राइट, इसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच को हम बंद करने की जरूरत है या नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव एंड सम आर पॉजिटिव। व्हाट डज इट मीन? देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ दो वर्ड्स की फर्क है। सम आर नेगेटिव एंड सम आर पॉजिटिव। नेगेटिव मींस इन सम फंडामेंटल राइट्स जो गवर्नमेंट है, जो उसको कहा गया they cannot do that, and somewhere इनको कहा गया कि गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट cannot discriminate a person merely on the basis of caste, creed, religion, etc. So government cannot. So this is negative. And government should promote the equality of all people. This is a positive. So, okay, equality before the law. Government should promote the employment for all persons. This is in terms of positive. So this is the clear. Okay, some fundamental rights are positive, some are negative. Okay, for example, government should discourage the untouchability. Government should not promote the untouchability. या प्राइवेट पर्सन। सो यहाँ पे हम कहते हैं सम फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव एंड सम आर पॉजिटिव। ओके, इसी तरह ऑल फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट, सम आर आल्सो अवेलेबल अगेंस्ट पर्सन। देखो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, दे आर ऑल अगेंस्ट द स्टेट। जो है फंडामेंटल राइट जो है, दिस इज एक्चुअली गिविंग द प्राइवेट पर्सन ए सिटीजन पावर टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स अगेंस्ट द स्टेट पावर। यानी कि स्टेट, ये इसीलिए होता है कि स्टेट कैन नॉट यूज इट्स पावर टू करप्ट द पीपल, टू किल द पीपल, टू हार्म द पीपल। तो ये सारी फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर एक्चुअली गिवन टू द पीपल टू प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम द पावर ऑफ द स्टेट। ओके, स्टेट का जो पावर है उससे बचने के लिए फंडामेंटल राइट्स लोगों को दी जाती हैं। लेकिन ये सारी फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं लोगों के पास टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द स्टेट पावर, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द एनार्की ऑफ द स्टेट, द रूलिंग ऑफ द स्टेट। सो समटाइम्स ए गवर्नमेंट में बिकम ए डिक्टेटर, कभी ये डिक्टेटर बन सकता है। तो उस वक्त जो है लोगों को ये फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट तो देती है, लेकिन कभी कभी ये फंडामेंटल राइट्स जो है दिस आल्सो प्रोटेक्ट द पीपल अगेंस्ट द प्राइवेट पावर। पता है कि गवर्नमेंट cannot discriminate the people, government cannot let the people to practice untouchability, नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन जो है गवर्नमेंट जो है लोगों के साथ अनटचेबिलिटी फील जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती है कि we have advertised, we have opened the forums for example पुलिस के लिए,
टीचिंग के लिए या मुख्तलिफ चीज़ों के लिए फार्म भरने हैं, तो आओ लोग आप फार्म भरो, वहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर रीजन के लोग या पर्टिकुलर कास्ट के लोग या फलानी लोग फार्म नहीं भर सकते। गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं कर सकती ना, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ये फंडामेंटल राइट्स तो गवर्नमेंट की पावर को जो है लिमिट करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन यही फंडामेंटल राइट्स कभी कभी जो है प्राइवेट लोगों से बचने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई आएगा, वो कहेगा, ब्राह्मण आएगा, वो कहेगा शूद्र से आप यहाँ पे मत बैठो, इसका मतलब कौन यहाँ पे पावर दिखा रहा है? सो हियर उसका जो फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी का एवोल्यूशन है, जो फंडामेंटल राइट जो 17 है, वो अब शूद्राज के पास है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है किसके खिलाफ? कॉमन पीपल के खिलाफ। फॉर एग्जांपल इन एनी वे, फॉर एग्जांपल गाड़ी में चढ़ गए आप, वहां पे कोई आपको ये नहीं बता सकता आप इसी पर्टिकुलर कास्ट के हो, आप नीचे उतरो, नहीं हो सकता। प्राइवेट पर्सन भी कभी अपना पावर दिखा सकता है और वो ये जाहिर करने की कोशिश कर सकता है यू आर इंफीरियर टू मी। यहाँ पे भी स्टेट के खिलाफ तो है ही, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स प्राइवेट पर्सन से भी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, ओके ना ये चीजें। इसी तरह फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यानी कि इफ एनीवेयर जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो आगे पढ़ेंगे हम, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, फॉर एग्जांपल इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एम्प्लॉयमेंट, रिलीजियस प्रैक्टिस, कल्चरल राइट्स, these things, these fundamental rights are justiciable। justiciable मतलब क्या है? अगर कोई आपसे ये छीन रहा है, अगर आपको कोई ये फंडामेंटल राइट्स नहीं दे रहा है, then as per the article 31 है आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 you will move to the code, आप कहाँ जा सकते? सॉरी, आर्टिकल 31 was removed because it was a property right, okay, I just got it, okay, लेकिन according to article 32 if somewhere your fundamental rights are violated, you are not treated equally, you are not giving the you are not giving the equality before the law, okay, if you are discriminated on the basis of caste, creed, etc., then according to article 32 you have a right to go to the court। आप कोर्ट को जा सकते हो कि मुझे इस स्कूल ने, मुझे इस इंस्टीट्यूशन ने, मुझे इस आदमी ने क्या है सिर्फ इस बुनियाद पे जो है मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन की। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया तो वहां पे कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है, वो जो है आपका फंडामेंटल राइट को बचा सकता है, ठीक है। जो इसी को हम कहते हैं तुई गशु। अगर आप देखोगे हाई कोर्ट में, अगर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट में, बड़े बड़े कोर्ट्स में जो है ज्यादातर केसेस ऐसे होते हैं जहां पे लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। जब वो वायलेट होते हैं वो कहां जाते हैं? हाई कोर्ट जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जब वो जाते हैं तो वहां पे कोर्ट डिसाइड करता है कि वाकई इसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है या नहीं। अगर उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो वो गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है विद इन ए मोमेंट को आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, दे आर जस्टिसेबल। यानी कि अगर आपके साथ उनके इंसाफ नहीं कि आप इंसाफ करवा सकते हो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ पे एक और चीज कि आप देखो फंडामेंटल राइट्स कितने स्ट्रांग है, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यू कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज जो प्रोसीजर होता है वो कहाँ से शुरू होता है? सेशन कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट। फिर भी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में इंटरटेन होगा या नहीं है। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, द गवर्नमेंट आर्टिकल 32 गिव्स यू पावर, यू कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट कर जा सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो दिस इज फंडामेंटल राइट, ओके। इसी तरह डीएसपी, इसी तरह हमारे पास दूसरा है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो है वो जस्टिसेबल नहीं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। कब से फंडामेंटल राइट्स की एक और इंपॉर्टेंस है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। अब ये इंपॉर्टेंट बात है। फंडामेंटल राइट्स को जो है आपने देखा है कि फंडामेंटल राइट्स जो है इतने सारे हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है और कुछ जो है बाकी सारे जो है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स को कभी हम सस्पेंड भी कर सकते हैं, बिल्कुल लोगों को उनसे महरूम भी किया जा सकता है, वो बिल्कुल नहीं दिए जा सकते इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स सो। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी का टाइम आ गया, इमरजेंसी 3 किस्म की होती है। कितने किस्म की? 3 किस्म की इमरजेंसीज होती है। अगर इन तीनों इमरजेंसीज में से कोई भी एक किस्म की इमरजेंसी आ गई तो गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, जिससे ऑटोमेटिकली वहां के सिटीजन को जो फंडामेंटल राइट्स मिल रहे थे वो उनको मिलने बंद हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर
फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, ठीक है, मुल्क लोग दिवालिया हैं, ठीक, फंडामेंटल राइट्स जो है यहाँ पे सस्पेंड हो जाएंगे। इसी तरह अगर फॉरेन एग्रेशन हुआ, बाहर से किसी मुल्क ने इंडिया पे अटैक कर दिया, तो ऐसे में जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंड किया जा सकता है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल स्टेट में अंदर वायलेशन हो गई, ठीक है, स्टेट में अंदर लोगों का प्रोटेस्ट हो गया, स्टेट में लोगों ने कुछ रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की, तो ऐसे में भी जो है द गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी। व्हेन द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इट मींस फंडामेंटल राइट्स आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, बट एक्सेप्ट टू फंडामेंटल राइट्स। दो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। कौन कौन से? आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ओके, यानी फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ, इसको ठीक है, राइट टू लाइफ इसको जो है कर्व नहीं किया जा सकता है, यानी कि दिल करे अगर सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन राइट टू लाइफ जिंदा रहने का हक सबको है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। अगर फॉर एग्जांपल ये करो खत्म, तुम मान लो इमरजेंसी में कहां से कुछ मुझे तुम है कैसे, इसी तरह जो है आर्टिकल 21, 22, 20 जो है, these are not suspended even during the emergency, समझ में आ गया? ओके, इस गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं? गोल्डन ट्रायंगल ऑफ राइट्स, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ राइट्स जिनको कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल ऑफ राइट्स। इसमें 3 राइट्स आते हैं जिनको जो कि वो वेरी इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स में, वो जो है आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14, 19 एंड 20, 19 एंड 20 हम करेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही बस, ठीक है, ओके ओके। इसी तरह जो है अब यहाँ पे देखो, अब हम करते हैं स्टेट की बात। क्या करते हैं? स्टेट। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हमारी एक टर्म आ जाती है, दैट इज नोन एज स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टेट। यानी फॉर एग्जांपल ए स्टेट कैन नॉट डू दिस, ए स्टेट कैन नॉट डू दैट, ए स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, ए स्टेट टर्म। बट व्हाट इज द स्टेट? स्टेट मीन्स the central government, state means the parliament of India, legislature and executive. State also means the state that we are saying, for example Gujarat, for example Haryana, for example Punjab, these are states. It means state legislature, it means state executive. State also means country. स्टेट also means country, वो तो है ही। स्टेट also means municipality। अगर कोई भी municipality, अगर कोई भी पंचायत कोई भी एक्टिविटी करता है, it will be treated that this step has been taken by the state।